My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing composition of functions. We've already understood what is a function and how to solve questions related to functions. Okay, so what is a composition of functions? When we have more than one functions in a row, in a sequence, in that case, we have to apply them in that perfect order. Okay, so what was the function? The function was basically like a machine. Input, and then when input is processed through a function, we are getting output. But what if we have two functions in a row? Okay, let us say the functions are f and g, and these are in a sequence. So if we are giving an input, that input will be x, and processing it via function f. So function f will be giving us an output, and this output will be f of x. ये तो fx हो जाएगा अपना, ठीक है। और अब जो fx हमें मिला है, now we have to process this via function g. But for the function g, this fx will be our input. Isn't it so? ये fx हमारा function g का input होगा, और function g हमें result में क्या देगा? अपना output देगा. Output of function g will be g of input, which in this case is fx. So this will be g of fx. Output, our final output will be g of fx in this case. Sequence क्या था हमारा? पहले हमने input को insert किया function f में, then a function f gave us an output which became input for function g, and then our final output is g of f of x. ठीक है, this is g of f of x. So basically पहले हम x से fx पे गए and then from fx to g of fx. ठीक है, तो प्रोसेस हमारा क्या होगा? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम x टू fx एंड देन फ्रॉम fx टू g of fx. तो हमेशा जब भी रीड करना है इसको, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वी आर गोइंग. ठीक है, फ्रॉम x टू fx टू g ऑफ fx. g बाहर आ रहा है, बट कंफ्यूज नहीं होना, g बाहर आ रहा है यानी कि सबसे लास्ट में g को हमें काउंट करना है, यानी कि सबसे लास्ट में gx आएगा, पहले fx आएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड h g f of x. ठीक है, इफ दिस वॉज our expression, so from x we went to fx, पहले हमने fx निकाला, then from fx we went to g of fx, फिर हमने g of fx निकाला, और फिर लास्ट में हमने किया h of g of fx. तो h वाला फंक्शन सबसे लास्ट में अप्लाई किया. तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा? फ्रॉम x इंसर्टेड टू फंक्शन f, then g and then h, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सिंपल फंडा है, बट जैसे ही ये समझ जाओगे तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि g ऑफ f ऑफ x दिस इज, बट इफ इंस्टेड we had inserted input to function g, and then function g gave us an output, but this output will be input for function, let us say f लगा रहे हैं क्योंकि f और g का ही बात कर रहे थे. ठीक है, f. तो दिस इज इनपुट फॉर फंक्शन f. तो हमारा आउटपुट फाइनली हमें क्या मिलेगा? If input was x, output will be g of x. Now this gx is input for f, and f of input will be f of gx, f of g of x. Now representation का एक और तरीका, एक तो हमारा हो गया ब्रैकेटिंग का मेथड. सेकंड मेथड इज दैट वी आर ऑल्सो राइटिंग दिस एज g gof of x. ठीक है, gof of x, g of f of x is also written as gof of x, or this is written as f of g fog of x. तो बस ये लिखने का एक मेथड है, दैट इज ऑल. सिंपल चीज़ें हैं, बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया. ठीक है, अब आगे की बातें देखते हैं और समझते हैं. तो एक एग्जांपल ले लेंगे तो बेस्ट समझ में आएगा. लेट अस से कि हमारा फंक्शन एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, and there is another function gx, and let us say gx is equal to 2x minus 3. fx is equal to x square plus 1 and gx is equal to 2x minus 3. Now we need to find f of fog 4. यानी कि पहले हमें 4 का g4 से g4 पे जाएंगे, g4 से f of g4 पे जाएंगे, यही तो हुआ. f of g of 4,
एंड G4 विल बी इक्वल टू, G4 फाइंड आउट कर लेते हैं, Gx इज 2x minus 3, G4 विल बी 2 into 4 minus 3. So 8 minus 3 which is 5, so f of 5, and f of 5 will be 5 square plus 1 which will be 26. So fog of 4, f of g of 4 will be equal to 26. Instead अगर हमें निकालना होता g of f of 4, so this would have been g of f4 and f4 will be 4 square plus 1. This will be g of 17, 17 into 2 minus 3 which will be 31. Obviously both are different, both are not the same. क्लियर है? अगर इंस्टेड हम जनरलाइज करें इसी चीज को कि पहले में निकालना है f of g of x, तो gx is 2x minus 3, यानी कि दिस विल बी f of 2x minus 3, f of 2x minus 3, and f of 2x minus 3 will be 2x minus 3 whole squared plus 1, which will be 4x square, 2x का whole square यानी 4x square plus 3 square minus 3 का whole square, that is 9, और minus 2x into 3 into 2 यानी कि minus 12x plus 1. Ultimately this becomes 4x square minus 12x plus 10. ठीक है? अगर हम आउटसाइड से इनसाइड भी जाते हैं तो भी चलेगा, बट लॉजिकली जाना है. कैसे जाना है कि f of gx है एंड वी नो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. f of x इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो f of gx क्या होगा? f of gx विल बी, gx इज द इनपुट इन f, तो gx का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड gx इज 2x minus 3, so this will be 2x minus 3 whole squared plus 1. बात एक ही है, बस करने का तरीका अलग है. क्लियर है? तो दोनों तरह से कर सकते हो. सिमिलरली कमेंट में मेंशन करना कि g of x क्या होगा, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now let us discuss domain of a composite function. Domain of a composite function. Now let us take our two functions. नए functions लेते हैं. Let us say fx is equal to root of x minus 3 and gx is equal to x minus 1 कर लेते हैं. ठीक है? As we already know कि f of gx and g of x are mostly different. कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं, but mostly they are different. तो since the functions are different, so their domain will also be different in general. ठीक है? इन जनरल कभी कभी स्पेशल केसेस में जहाँ पे कि फंक्शन सेम होंगे तो उनका डोमेन भी सेम हो जाएगा. फंक्शन हो सकता है डिफरेंट हो, स्टिल डोमेन सेम हो, दैट इज पॉसिबल, बट अदरवाइज फंक्शंस आर डिफरेंट, तो डोमेन कैन ऑल्सो बी डिफरेंट. ठीक है? सो हमें अब यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करना है. लेट अस से फॉर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, what will be domain for f of g of x. First of all, let us find out domain of fx and domain of gx. तो fx का डोमेन क्या होगा? fx is root of x minus 3, तो inside the value यानी कि x minus 3 should be greater than equal to 0, which implies that x should be greater than equal to 3. This will be domain for function fx. Similarly gx, x minus 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, x कुछ भी वैल्यू लो, 0 लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, सब चलेगा, क्योंकि x minus 1 में कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है. तो x should be any real number. This will be domain for gx. डोमेन का जो असली पंगा आ रहा है वो आ रहा है fx में. gx में कहीं पे कोई इशू नहीं है. f of gx जब हम कर रहे हैं तो ध्यान से समझना मेरी बात को. f of gx में बेसिकली इन fx our value is root of x minus 3, यानी root of input minus 3, यानी कि input minus 3 should be a greater than equal to 0 value, यानी कि gx f of gx करेंगे तो ये क्या होगा? दिस विल बी बेसिकली root of gx minus 3. तो gx minus 3 should be greater than equal to 0, यानी कि gx should be greater than equal to 3. gx है हमारा x minus 1, यानी कि x minus 1 should be greater than equal to 3, and hence x should be greater than equal to 4. So for f of gx our domain will be x should be greater than equal to 4. क्या ये क्लियर है? ठीक है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है? सिमिलरली अगर हम g ऑफ fx करें तो उसका डोमेन क्या होगा? g ऑफ fx, g ऑफ fx विल बी इक्वल टू, भाई g पे तो कोई टेंशन नहीं है, तो g ऑफ fx के केस में fx हमारा क्या है? दिस विल बी fx minus 1, और fx कैन बी एनी रियल नंबर, नो प्रॉब्लम, बट फिर fx की वैल्यू प्लेस करोगे और fx हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस 3.
दिस विल बी रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन आउटसाइड है, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन, यानी कि दिस वैल्यू रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है, दिस विल ओनली बी डिफाइंड व्हेन एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी कि x should be greater than equal to 3 and this will be our domain in case of g of f of x। ठीक है, एक तो तरीका हो गया कि हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, अदरवाइज तुम f of gx की फाइनल वैल्यू निकाल लो और फिर फाइनल वैल्यू पे चेकआउट कर लो कि डोमेन क्या होगा। जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि दिस विल बी रूट ऑफ जी एक्स माइनस थ्री, जी एक्स ये प्लेस कर दो x माइनस वन, तो दिस विल इफेक्टिवली बी इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन माइनस थ्री, यानी कि रूट ऑफ x माइनस फोर। दिस x माइनस फोर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी कि x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फोर स्ट्रेट अवे। और जैसे हमने यहाँ पे देखा रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन, तो क्लियरली एक्स शुड बी ग्रेटर देन थ्री। तो या तो फाइनल वैल्यू निकाल लो या फिर इस तरह से समझ लो। बेसिकली जब भी हम डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन निकालेंगे तो डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई बोथ द फंक्शंस, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई द इनपुट शुड बी डिफाइंड फॉर बोथ द फंक्शंस, ठीक है, कि जैसे हमने इनपुट प्लेस किया दैट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फॉर दैट इनपुट एंड ओनली देन दैट विल बी डिफाइंड। डिपेंड्स ऑब्वियसली जो डोमेन है हमारा दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। f of gx के लिए डोमेन विल बी डिफरेंट, g of x के लिए डोमेन विल बी डिफरेंट, depends on the constraints applied। Okay, here now that we have understood the domain, let us come to the range part। range वाला काम easy है because as the domain is defined everything is crystal clear, range will not create much of a problem। for example in our first case हमारा f of gx क्या है, रूट ऑफ x माइनस फोर, तो रेंज क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस फोर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। Instead, if we add g of f of x, that value is coming out to be root of x minus 3 minus 1. The root of x minus 3 will always be greater than equal to 0. और we are subtracting 1 from it, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जबकि रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री जीरो होगा, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस वन एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, यानी कि रेंज इन दिस केस विल बी फ्रॉम माइनस वन टू इन्फिनिटी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड द पार्ट डोमेन एज वेल एज रेंज। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक क्वेश्चंस और फिर कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, given fx is equal to 3x plus 2 and gx is equal to x square minus 1, so what will be f of g of x, f of gx, f of gx, और gx क्या है हमारा x square minus 1, यानी कि f of x square minus 1 and fx है 3x plus 2, यानी 3 times input plus 2, 3 times of x square minus 1 plus 2, which will be 3x square minus 3 plus 2, यानी कि 3x square minus 1। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let fx is equal to x plus 5 and gx is equal to 2x, तो what is the value of gf of 3? g of f of 3 का वैल्यू क्या होगा when fx is equal to x plus 5 and gx is equal to 2x? gf of 3, g of f of 3। अब यहाँ पे gf of x नहीं निकालोगे डायरेक्टली, तो 3 वैल्यू पुट करके ही निकालो, तो g of f3 क्या होगा, f3 will be 3 plus 5, तो g of 3 plus 5 which is g8 and that will be 2 into 8 यानी कि 16। ऑप्शन डी, सिंपल सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if hx is equal to f of g of x and hx is equal to root of 4x minus 1, which of the following could be fx and gx? fx क्या होगा और gx क्या होगा? if our h of x is our function that is f of g of x, यानी कि from x to gx and then finally f of gx। okay, so if fx is equal to 4x, gx is equal to root of x minus 1, तो हमारा fog x क्या आएगा उस केस में, फिर fog x क्या आएगा, f of g of x क्या आएगा, gx will be root of x minus 1, तो f of root of x minus 1 क्या होगा, because f of gx है, तो f of root x minus 1 will be, fx क्या है 4 times x, तो this will be 4 times root of x minus 1 which is not equal to root of 4x minus 1, तो क्लियरली ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा। सेकंड केस में क्या है, f of gx यानी कि f of root of 4x और fx हमारा है x minus 1, तो दिस विल बी रूट ऑफ 4x minus 1, ठीक है, रूट ऑफ 4x minus 1 नॉट रूट ऑफ 4x minus 1, ठीक है, तो 4x minus 1 हमारा इनसाइड द रूट नहीं है, रूट ऑफ 4x minus 1 है, तो दिस इज अगेन नॉट इक्वल, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी
विल बी एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ ऑफ रूट एक्स, और एफ एक्स हमारा है 4x माइनस वन, तो इसलिए 4 टाइम्स रूट एक्स माइनस वन, अगेन नॉट द सेम एज रूट ऑफ 4x माइनस वन, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा, तो चलिए ऑप्शन डी फिर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एफ एक्स रूट एक्स और जी एक्स हमारा 4x माइनस वन, तो एफ ऑफ 4x माइनस वन विच विल बी रूट ऑफ 4x माइनस वन, तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If fx is equal to 1 by x and gx is equal to x plus 3, तो what will be domain of f of gx? f of gx का वैल्यू क्या होगा? डोमेन क्या होगा, वैल्यू नहीं, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या आ जाएगा f of gx का? तो f of gx is x plus 3 यानी कि f of x plus 3 and this will be 1 upon x plus 3 and 1 upon x plus 3 denominator should not be equal to 0 यानी कि x plus 3 should not be equal to 0, x should not be equal to minus 3, x should not be equal to minus 3, so x can take any real value except minus 3, तो all real values except minus 3, option B will be our answer। instead अगर हमारा होता g of fx, तब आंसर क्या होता, g of fx, ठीक है, so that would have been g of fx क्या है, x plus 3, fx है 1 by x, तो g of 1 by x, तो that will be g of 1 by x, ठीक है, तो 1 by x plus 3, in this case since denominator should not be 0, तो x should not be equal to 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, दैट x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली, तो g ऑफ एफ एक्स में हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा, बट एफ ऑफ जी एक्स में आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The next question is, a store offers a 20% discount on all items. You also have a coupon of $5 off. Let X be the original price. If the 20% discount is applied first, then the coupon यानी कि पहले सीक्वेंस क्या है हमारा, फर्स्ट वी आर अप्लाइंग 20% डिस्काउंट एंड देन वी आर अप्लाइंग कूपन ऑफ 5 ऑफ, $5 ऑफ वाला कूपन, देन वी आर अप्लाइंग, तो पहले 20% डिस्काउंट एंड देन $5 ऑफ वाला कूपन है, तो पहले लेटर से दिस फंक्शन इज देयर, देन दिस वाला, ठीक है। हमने क्या डिफाइन किया, एफ एक्स इज एक्स माइनस 5 और जी एक्स इज इक्वल टू 0.80x, ठीक है। पहले हमें कौन सा फंक्शन में अपना इनपुट डालना पड़ेगा या वैल्यू डालना पड़ेगा, लेट अस से अगर हमारे पास $100 का टोटल चार्ज होता, ठीक है, तो पहले क्या अप्लाई करना है, 20% डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो दिस फंक्शन विल बी 20% डिस्काउंट, फर्स्ट फंक्शन विल बी 20% डिस्काउंट। अच्छा, हमारे लिए जी एक्स को 0.8 का है, ठीक है, तो पहले हम क्या अप्लाई करेंगे फिर उस केस में, पहले 20% डिस्काउंट देना है यानी कि 80% बचेगा, तो जी विल बी 20% डिस्काउंट विच विल बी 0.80x, दिस 100 becomes $80, and once we applied function g, after that we have to apply function f, which will be subtraction of $5, so minus $5 from 80, to 80 minus 5, output will be $75, this function f will be basically x minus 5, पहले g then f, isn't it so? तो हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, so this will be, if this was x, this will be gx, and then finally this will be f of g of x, answer will be f of g of x, where fx is x minus 5 and gx is equal to 0.80। क्लियर है? तो क्या यहाँ से फंक्शन समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और चाहते तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे कि वैल्यूज पुट करके अपना ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेते, वो भी एक तरीका है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए या फिर डी तो आंसर नहीं हो रहे थे, बी और सी में से कोई एक होना था। ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर ये है कि फर्स्ट 20% डिस्काउंट इज अप्लाइड, तो फर्स्ट विल बी अप्लाइंग जी एक्स इन दिस केस एंड देन विल बी अप्लाइंग एफ एक्स, एक्स से जी एक्स पे जाएंगे, जी एक्स से एफ ऑफ जी एक्स पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is equal to mod of x minus 2 and gx is equal to f of fx, then how many real solutions does the equation gx is equal to 2 have? बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। पहले अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं पे गलती भी हो तो भी चलेगा, बट टेक योर टाइम, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की कि इसके एंड तक पहुंचो। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, like we are applying basically from x we are going to fx, then from fx we are going to f of fx, and then finally we are going to f of
ठीक है, तो एफ एक्स हमें दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड वी नीड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर जी एक्स इक्वल टू टू। जी एक्स हमारा इज इक्वल टू एफ एक्स। तो दो तरीके हैं, या तो इनसाइड आउट जाए या फिर आउटसाइड इन जाए, दोनों तरीके चलेंगे। पहले हम पहला तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वे विल बी एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे समझो कि दिस इज इनपुट फॉर द आउटर फंक्शन एफ। आउटर एफ के लिए ये हमारा इनपुट है और हमारा एफ ऑफ इनपुट इज मॉड ऑफ इनपुट माइनस टू। दिस विल बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू। क्लियर? isn't it so? And gx this is equal, this was equal to gx, gx equal to 2 के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो this should be equal to 2 mod of something if that is equal to 2, तो that thing can be plus 2 or minus 2, यानी कि this value can be equal to plus 2 or minus 2, यानी कि f of fx minus 2 is equal to plus 2। ये केस आ गया, या फिर सेकंड केस आ जाएगा हमारा f of fx minus 2 is equal to minus 2। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f of fx becomes equal to 0, और फर्स्ट वाले केस में f of x becomes equal to 4। ठीक है, ये दो केसेस आए हमारे। अब इसके बाद में इनको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो f of x if that is equal to 0, यानी कि f of x क्या होगा, fx is the input, so this will be basically equal to f of fx will be mod of fx minus 2, यानी कि mod of fx minus 2 this is equal to 0, and since that is equal to 0, 0 तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो बेसिकली fx minus 2 is equal to 0 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि fx equal to 2 हो जाएगा। और पहले वाले केस में क्या है, f of x is equal to 4, इसको बाहर लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा mod of fx minus 2 equal to 4। तो यहाँ से दो केसेस मिलेंगे हमें, fx minus 2 कैन बी इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 4। जब प्लस 4 होगा तो fx विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी कि 6, यानी कि fx इक्वल टू 6 विल बी वन केस, एंड सेकंड केस विल बी fx इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 यानी कि माइनस 2। fx कैन बी इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 2। यहाँ पे हमें मिला है एक सॉल्यूशन fx इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 2 यानी कि mod of x minus 2 इज इक्वल टू 2। तो इफ mod of x minus 2 यानी कि x का 2 से डिस्टेंस, क्योंकि अब फाइनली हम लास्ट में पहुंच गए, तो अगर x का 2 से डिस्टेंस 2 का है तो हमारा x का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ करो, 2 से 2 प्लस 2 इज 4, 2 माइनस 2 इज 0। अगर मॉडुलस फंक्शन वाले सेशन देखें तो ये तो सिंपल मामला है फिर, ठीक है। तो mod of x minus 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि x कैन बी इक्वल टू 0 और x कैन बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इक्वल टू 0 और 4, x इज इक्वल टू 0 और 4। अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्या यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि एफ एक्स हमारा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और एफ एक्स इक्वल टू 6 यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 से डिस्टेंस कितना है 6 का, तो 2 प्लस 6 विल बी वन सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 8, एंड 2 माइनस 6 विच विल बी अनदर विच इज माइनस 4। तो हमें 4 सॉल्यूशंस मिल गए इन टोटल, दैट इज 0 4 माइनस 4 एंड 8, तो माइनस 4 0 4 8, टोटल 4 सॉल्यूशंस फॉर एक्स, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ही समझ पा रहे हो? क्लियर? योर सॉल्यूशन इन दिस केस विल बी टोटल 4 रियल सॉल्यूशंस विल बी गेटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एफ एक्स इक्वल माइनस 2 पे हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। क्या ये क्लियर? ओके, अब यही चाहते तो हम इनसाइड आउट भी जा सकते थे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनसाइड आउट जाते तो पहले एक्स से जाते एफ एक्स पे, एफ ऑफ अब एफ एक्स क्या है हमारा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, नाउ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इनपुट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 यानी कि एक्स की जगह पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो नाउ दिस बिकम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 and then finally this is the input for our outer f, so this will be mod of x minus 2 minus 2 mod minus 2, and this should be equal to, since this was the gx, so this should be equal to 2, and if this whole expression this is equal to 2 यानी कि जो आउटर मॉड को ओपन करोगे, so that should be equal to plus minus 2,
देखिए mod of mod x minus 2 दिस इज इक्वल टू प्लस टू और -2। बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमने पहले वाले मेथड से किया। हालांकि सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा कि -2 को राइट साइड में लेके जाओगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, और या फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो केसेस मिले हमें कि mod of mod x -2 and this can be equal to 4 or this can be equal to 0। ठीक है, नाउ इफ दिस इज इक्वल टू 0, mod of this is equal to 0, यानी कि क्लियरली mod of x -2 this is equal to 0, यानी कि mod of x -2 is equal to 2। तो x का 2 से डिस्टेंस 2 का है, यानी कि x कैन बी इक्वल टू 0 और 4। 2 -2 और 2 + 2 तो 0 और 4। पहले वाले केस में क्या है, mod इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस कैन बी +4 और -4। सेम लॉजिक जैसे भी सॉल्व किया था हमने। ठीक है, तो अपने एंड पे सॉल्व कर लेना इस तरह से भी। 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे टोटल हमारे। क्लियर है? अच्छा, एफ एक्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, कन्वेंशनली इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर हमें मेंशन है कहीं पे एफ एक्स, तो हमें पता है कि एक बार ही हमने एफ अप्लाई किया है। ठीक है, इफ इंस्टेड इट इज रिटर्न एज f2x, यानी कि दिस विल बी f of x, यानी कि fx is applied, function f is applied in a row twice. This implies that from x we applied our function f and then again we applied our function f. So this is f2x. ठीक है, if instead written f3x, this will be x is the input, f function is applied twice in a row and then we are getting output. ठीक है, तो in this case हमारा क्या है, this is equal to f3x, gx is equal to f3x। तो f3x भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, f3x का मतलब भी यही है, f3x is this is not equal to fx होल क्यूब। ठीक है, fx का होल क्यूब नहीं है, fx होल क्यूब होगा तो ऐसे लिखा होगा, these two are not equal, these two are different। f3x implies f of fx। ओके, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी बातें हमने इसकी सब कुछ समझ में आएगा, मजा आएगा इस सेशन में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गिव योर फीडबैक एज वेल। ठीक है, कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या सारी चीज़ें समझ में आई, या कहीं पे भी कोई डाउट रहा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ ज़रूर मेंशन करना कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पे डाउट आया। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा तो भी ज़रूर से फीडबैक में मेंशन करना और सेशन को लाइक ज़रूर करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मैथोलॉजिकल, और कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. And that's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.